Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, Reserve Bank of India, through its weekly bulletin, gives the information and data of various aspects in banking and liquidity. And this data is very crucial to gauge the direction of banking. And now, latest data that is released is as at 30th of May 2025. So, every alternate Friday, this figure is given, and that gives us sense in which direction banking is moving. So deposit growth is 9.9% as at 30th May 2025 as against 12.7% in the corresponding period last year. So around 3% fall is there in deposit growth. So deposit is a area of concern of banks these days. And with the fall of interest rate, this problem may become more difficult. Another data is advances. The advances growth is just 9%, and corresponding year growth was 19.8%. So around 10.8% fall in this. So both the figures have fallen. And when deposits fall and when growth in advances fall, it will naturally lead to fall in profitability or fall in growth in profitability, because profit is directly linked with growth in credit and growth in deposits as well, because deposit is a source that is being deployed. So if banks deposits are not growing at a pace at it should be, and advances are not growing as it should be, so it is indicative of falling profitability in banking sector in coming days. So it is a very challenging scenario as far as banks are concerned. So that's why I'm discussing. This channel is for banking, finance and economics, and daily basis we are covering the news also by way of short, since this news is of importance and it requires explanation, and that's why in the normal format also I am covering this news. So this data you must track if you are looking for competitions like RBI Grade B or SBI PO or IBPS PO, where interviews are there. These type of information is very essential for candidates. Sometimes some of you may be wondering why sir is sharing this data. But when you will go for an interview and when questions are asked, you will understand the importance of such type of news, because the board normally puts the question that is based on emerging scenario in a particular industry. So if you are going for banking exams or regulatory exams, they are always concerned whether candidate is aware about the economic activity, whether the candidate is aware about the trend in banking, and whether he has some solutions for the problems that is being faced by economy and banking sector. And that's why I try to cover all possible data that can help you to strengthen your knowledge. For many of you, it may not be that useful news, but for many of you, it may be highly useful news if you are serious candidate for RBI exams as well as banking probation officer exams. Such data can be very, very handy, and that's why I cover it. God bless you all. भारतीय रिजर्व बैंक अपने वीकली बुलेटिन जो कि हर फ्राइडे को निकाला जाता है, उसमें बैंकिंग से संबंधित और इकोनॉमिक्स से संबंधित काफ़ी आंकड़ों की घोषणा करता है। और बैंक बिजनेस से संबंधित जो आंकड़े हैं वो हर अल्टरनेट फ्राइडे को अपडेट होते हैं। मीन्स जो आंकड़ा इस हफ्ते के बुलेटिन में है सेम रिपीट होगा अगले के अंदर, मगर उससे जो अगला वीक आएगा उसमें नया डेटा आएगा। तो 14 दिन के गैप से बैंकिंग के डेटा को एनालाइज किया जाता है। तो जो लेटेस्ट आंकड़ा उपलब्ध हुआ है वो है 30 मई 2025 का। इसके अंदर जो डिपॉजिट ग्रोथ निकल के आई है, एनुअल डिपॉजिट ग्रोथ, वो है 9.9%, मीन्स 10% से नीचे आ गई है। ये एक चिंता का विषय है।
कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में पिछले वर्ष ये 12.7% थी। तो लगभग 3%, 2.8% की गिरावट है इसके अंदर। इसी तरीके से एडवांसेस की ग्रोथ भी 10% से नीचे ही चल रही है और ये 9% है। पिछले वर्ष ये 19.8% थी। तो इसके अंदर भी 10.8% की गिरावट है। तो जब बैंकिंग के अंदर डिपॉजिट की ग्रोथ रेट भी स्लो हो गई, एडवांसेस की ग्रोथ रेट भी स्लो हो गई, तो इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? इसका सीधा प्रभाव पड़ता है लाभप्रदता पे, क्योंकि बैंकिंग का प्रॉफिट क्रेडिट ग्रोथ पर डिपेंडेंट होता है और क्रेडिट की ग्रोथ के लिए रिसोर्स होता है डिपॉजिट की ग्रोथ। तो यदि दोनों स्लो हो जाएं तो ये एक चिंताजनक विषय होता है बैंकिंग के लिए। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आने वाला वक्त बैंकिंग के लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है और उनको रास्ते निकालने होंगे कि किस तरीके से डिपॉजिट की ग्रोथ को किया जाए और एडवांसेस की ग्रोथ को किया जाए। इसके कारणों को देखना होगा और उसका निवारण निकालना होगा। ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पर क्यों कवर करते हैं? कई लोगों को लगता है कि सर आरबीआई की न्यूज़ बता रहे हैं, इसका हमारे जीवन में क्या फ़र्क है? हम तो कैंडिडेट हैं, हमें तो एग्ज़ाम के बारे में बताया जाए। ये जो चैनल है ये कम्प्रीहेंसिव चैनल है। इसमें जो भी हम विषय कवर करते हैं उसका अर्थ है, क्योंकि अगर आप आरबीआई के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या रेगुलेटरी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहां इंटरव्यू है, वहां पर बैंकिंग की क्या ग्रोथ है, इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है आपको आंसर देने के लिए जो वहां पर प्रश्न आएंगे। और ये नॉलेज आप एक दिन में एक्वायर नहीं कर सकते। जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी विषय आ रहे हैं, अगर हम उसकी जानकारी रखेंगे तभी हम अपना कम्प्रीहेंसिव आंसर बना पाएंगे। तो इसलिए एक तो हम डेली न्यूज़ कवर करते हैं, न्यूज़ ऑफ द डे के अंदर, जिसमें जो भी क्रक्स है बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक न्यूज़ का वो मैं आपको शॉर्ट की शेप में दे देता हूँ। कई खबरें ऐसी होती हैं जिसको डिस्कस करना जरूरी है, डिटेल में बात करना जरूरी है, जैसे आज की ये खबर है डिपॉजिट की ग्रोथ, एडवांस की ग्रोथ, क्योंकि ये पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को अफेक्ट करने वाली खबर है। इसलिए इसको विस्तार में चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर डिपॉजिट की ग्रोथ नहीं होगी, रॉ मटेरियल नहीं होगा, बैंकिंग के लिए डिपॉजिट ब्लड की तरह है। अगर ब्लड की कमी हो जाती है किसी शरीर में तो क्या होता है? शरीर बीमार पड़ जाता है। इसी प्रकार अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में डिपॉजिट ग्रोथ घट जाए या नेगेटिव में चली जाए, अभी तो कभी नेगेटिव गई नहीं है, पॉजिटिव ही है, मगर घटना भी अपने आप में अच्छा साइन नहीं है। तो इन विषयों को इसलिए हम कवर करते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा ऐसा वीडियो डालते हैं तो कई लोग कहते हैं सर मुझे क्या फ़ायदा। हो सकता है अभी आपको समझ नहीं आ रही है इसकी इम्पोर्टेंस, पर जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और जो ये वीडियोस देख के गए होते हैं उनको समझ आता है कि अग्रवाल सर ने कवर किया था, देखो आज काम आ गया। गॉड ब्लेस यू ऑल।